फिल्म, ठीक है। एक हम बना रहे फिल्म। उस फिल्म के अंदर हमें एक लड़का चाहिए जो अच्छाइयाँ करता है। आपके पास 4 लड़के आके बैठे हुए आप हैं। बहुत अच्छाइयाँ करते हैं, लेकिन आपको कोई हीरो नहीं देगा। एक बात मेरी बोल पूरी रही बात तो सुन। अच्छा मैं मेजॉरिटी की बात करूँ, 4 लड़के आपके पास आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मौसिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत टर्की बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की हमारी वीडियो है कुछ हटके से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। वीडियो का टाइटल है मनुषी चिलर्स बेस्ट रिप्लाई टू पाकिस्तान क्लेमिंग देयर वीमेन कैन इजीली विन। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जिस तरह से आपने अपना और पूरे भारत देश का नाम रोशन किया। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम आपको किन शब्दों में विश करें, लेकिन ढेरों सारे सवाल है मानुषी जी आपसे पूछने के लिए। सबसे पहला सवाल ये कि आपके मिस वर्ल्ड बनते ही पाकिस्तान में एक डिबेट चालू हो गई। वो ये कि उनका ऐसा कहना है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़कियाँ पाकिस्तान में हैं, लेकिन बुरखे में। तो जब आप इस तरह की चीज़ें सुनती हैं, पढ़ती हैं, आपको बताया जाता है, तो क्या टेक होता है आपका? क्या कहना चाहिए? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ बाहरी सुंदरता की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे, आपने अगर मिस वर्ल्ड देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हर लड़की बहुत ही सुंदर थी, पर अपनी बाहरी सुंदरता को किस तरह से आप इस्तेमाल करके आप लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं। इट्स अबाउट दैट एंड it's not the most beautiful, I don't think it's the most beautiful face that wins. It's just that one beautiful heart that is selected to represent those beautiful faces. And it doesn't matter which country you are from, to be honest. It is that one person and how can you contribute to the world. Manushi, this is... Hi. Hi. Priyanka from Indian Express. Hi, Priyanka. So, on one, congratulations first of all. On one hand, we are celebrating an Indian woman's international victory. And on the other hand, we are witnessing open death threats to an actor, to an Indian woman who's already internationally recognized. So how do you react to something like that? I feel that there's one thing all Indian women have in common is that we don't feel persecuted of who we are, and we actually face our challenges head on. And I think that's what we need to do. We need to be confident about who we are, and definitely we will face a lot of limitations, and it isn't, sometimes we do feel that it's not a very women-friendly society, but as individuals we should just set an example and make women feel confident that you can do amazing things as well. Manushi, Manisha here from TI. Hi Manisha. I just wanted to know, so what are your plans now, further plans, and so Bollywood calling soon now? Well, I think this one year, I'm very excited about my year that I'll be traveling, and we'll be visiting 4 continents, and I'm really happy because we'll be working forward about spreading awareness on menstrual hygiene, and I'll be joined by my other Miss World sisters. We have 6 continental queens as well. So that is what I'm excited about right now, and Bollywood is something which is not on my mind as of now, so I really can't say anything about it. Good evening. Hi, Satish here. Heartiest Satish. congratulations. Thank you. The very moment you won the title, okay, after that, till now, have you managed to speak to Rita Faria, the person whom you idolized, and also Amir, the person with whom you want to make your Bollywood debut, you dream of making your debut with? Well, when I won Miss World India, actually, I did write her an email, which I haven't gotten a reply to yet, but I hope that I'm able to go to Dublin and meet her in person, and I haven't been able to speak to either of them. Manushi, this is... अक्सर हम सोचते हैं, और हमने हमारे भी दोस्तों में और मीडिया में जैसे हम हैं, तो अक्सर ये होता है कि मिस वर्ल्ड इंडिया से अक्सर बनती हैं, तो वहाँ पर असल में कल्चर है कि पार्टिसिपेट करने का रुझान है। हमारे यहाँ नहीं है पाकिस्तान में, मज़हब की वजह से, माहौल की वजह से। अच्छा, डांस और सिंगिंग को भी बहुत प्रमोट किया जाता है वहाँ पे, बहुत मतलब प्रायोरिटी दी जाती है। हमारे यहाँ तो नहीं ये है। बात अक्सर, ये जो सवाल किया गया है कि पाकिस्तानी कहते हैं, या पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ पाकिस्तान में हैं, और लेकिन वो अबाए में हैं। ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये बहुत सारे पाकिस्तानियों के जहन में है। ठीक है, तो उन्होंने इसका रिप्लाई किया है
कि फेस अच्छा होना ज़रूरी नहीं है कि आप वो खूबसूरत है। उनका कहने का मतलब ये है कि अच्छा दिल, अच्छा मतलब एक बॉडी, फेस अच्छा, उसके साथ साथ वो एक अच्छा इंसान भी हो, तो वो एक मतलब मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स जो भी ये बनता है। तो आपका नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में अगर बहुत सारी लड़कियां खूबसूरत हैं, खूबसूरती तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और ये चीज़ बहुत सारे लोगों ने कही है कि वाकई पाकिस्तान में खूबसूरती है, ये बात बहुत सारे लोग मानते हैं, बाहर के भी, पाकिस्तानी भी। हम इंडिया भी गए, पाकिस्तान भी गए, बहुत सारे लोग मानते हैं इस बात को कि हम इंडिया के पाकिस्तान गए तो हमें पाकिस्तान में खूबसूरती ज़्यादा दिखती है। तो कई लड़कियां खूबसूरत हैं, तो क्या उनका दिल या उनकी शख्सियत खूबसूरत नहीं होगी? खूबसूरत होने के साथ साथ हो सकती है। और इन जो लड़की ये बनी है मिस मनुषी चिल्लर, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत इखलाक से बात कर रही हैं, बहुत अच्छा मुस्कुराना, बहुत तरीके से मुस्कुराना, और हाँ बहुत अच्छे तरीके से। आपको जेलसी हो रही है? आपको जेलसी नहीं होनी चाहिए, आप मेरे साथ बैठी हैं, आपको जेलसी हो रही है। अच्छा, आगे तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, अक्सर मैंने एक चीज़ नोट की है, खूबसूरत शख्स का दिल खूबसूरत ही होता है। मैंने अक्सर नोट किया है, मैंने अक्सर नोट किया। अच्छा, इसकी मैं आपको एक साइकोलॉजी रीज़न बताता हूँ, पहले आप इस पे बात कर लें। अच्छा, फिर यहीं से आएंगे, कहाँ से? साइकोलॉजी रीज़न। खूबसूरत शख्स खूबसूरत दिल का मालिक होता है। मैं थोड़े से अपने व्यूज़ बताऊँ। मैं भी ये सोचा करती थी, क्योंकि मैंने प्रॉपर्ली ये होता है ना कि मैंने ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं या फिर मिस इंडिया वगैरह, ये मैंने इतना देखा नहीं है, तो मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ज़्यादा नहीं कह पाऊँगी। लेकिन ये है कि मैं ये सोचा करती थी कि वहाँ तो एक से बढ़कर एक है। बिल्कुल ठीक है, जब ऐश्वर्या बनी थी तो उनके कॉम्पिटेट में जो दूसरी लड़कियाँ थी वो भी बला की खूबसूरत थी और फिगर्स भी बहुत अच्छे थे उनके। तो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मतलब किसी एक को चूज़ करना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होता है। किस तरह करते होंगे? अगर ब्यूटी को देखकर करते हैं, बाई फेस करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता होगा, कैसे जज कर पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इंटेलिजेंस को भी देखा जाता है, फिर इसके अलावा बिहेवियर, स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, उसके बाद किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, आपकी बात का जवाब देना चाहूँगी, खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा खूबसूरती है। ठीक है, ऐसा ये बहुत सारी जगहों पे डिस्कस होती है। हाँ, होता होगा, भले वो अपने अपने व्यूज़ होते हैं। मेरा ये ओपिनियन है कि खूबसूरती जो है ना वो पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल फैली हुई है, हर जगह है। अब आपको पता है दीपिका, वो मेरी पापा की फेवरेट है। वो कहते हैं जो अट्रैक्शन मुझे दीपिका में दिखती है किसी हीरोइन में नहीं दिखती, चाहे वो पाकिस्तानी कोई हो, चाहे वो इंडियन कोई भी हो। तो देखें, खूबसूरती ब्यूटी की कोई डेफिनेशन नहीं है एग्जैक्ट, वो तो देखने वाले की आंख में। आपको पता है, अब मुझे जो अच्छा लग रहा है जरूरी नहीं वो आपको अच्छा। आपको पता है कई कंट्रीज़ में ब्यूटी की डेफिनेशन स्याह काली लड़की, कई ऐसे कंट्रीज़ में। अच्छा, मैंने ये देखा है, अक्सरियत से ये देखा है, अट्रैक्शन जो है ना वो देखने वाले की आंख में होती है। होती है। और इसके अलावा मैंने देखा अट्रैक्टिव लड़कियां जो होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन जो पाई जाती है, मैंने देखा इंडियन हीरोइंस में पाई जाती है। सही, क्योंकि उनके कलर्स जो आपने देखा है, कॉम्प्लेक्शंस जो होते हैं थोड़े से डार्क, प्रियंका को ले लें आप, ठीक है, दीपिका को ले लें आप, काजोल को ले लें आप, रानी मुखर्जी को ले लें आप, तो अट्रैक्टिव बहुत होती हैं वो, कि अपनी तरफ माइल करने वाली कशिश एक पाई जाती है, जो मुझे लगता है वाइट लड़कियों में या बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन की लड़कियों में नहीं पाई जाती। अब एक बात आपने ये कही कि जो इंसान दिखने में खूबसूरत होता है वो दिल का भी खूबसूरत होता है। इसकी मैं एक साइकोलॉजी रीज़न बताऊंगा, फिर उसके बाद आप क्या कहती हैं इसमें? ज़रूरी नहीं है, आपने ये कहा ज़रूरी नहीं है। मैं अच्छा, तो नहीं मानती। अच्छा, मैं भी नहीं मानता, लेकिन मैं इसकी मेजॉरिटी की बात करेंगे, लेकिन हाँ, मैं आपको इसकी एक लॉजिक बताता हूँ। एक हम बना रहे हैं फिल्म, ठीक है, एक हम बना रहे हैं फिल्म, उस फिल्म के अंदर हमें एक लड़का चाहिए जो अच्छाइयाँ करता है। आपके पास 4 लड़के आके बैठे हैं, आप बहुत अच्छाइयाँ करते हैं, लेकिन आपको कोई हीरो नहीं लेगा। एक बात, मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं मेजॉरिटी की बात करूँ, 4 लड़के आपके पास आए हुए हैं, आपने एक करेक्टर देना है पॉजिटिव लड़के को। ठीक है, अच्छा भाई, एक करेक्टर आपके पास है नेगेटिव लड़के का, ठीक है, उसके लिए भी आपके पास 4-5 लोग आए हुए हैं। ठीक है, एक डाकू का करेक्टर है, वो बड़ा ख़तरनाक डाकू है, और एक कुछ लोग आपके पास आए हुए हैं, खूबसूरत भी हैं, कुछ काले पीले भी हैं, कुछ के कट लगे हुए हैं, कुछ के मतलब खौफनाक चेहरे भी हैं। तो आप उनकी शक्लों के हिसाब से उनको करेक्टर देंगी?
एक पॉजिटिव लड़का है जो अच्छाइयाँ करता है, तो आप उन लड़कों में से अच्छे को चुनेंगी क्योंकि वो उस पर फिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, हमें नहीं पता, लेकिन हमारी लाज शऊर में अगर ये चीज़ फिक्स है कि यार ये लड़का इस करेक्टर के लिए फिट है, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं आपको आप पहले मेरी बात समझिए। वो जो कैरेक्टर होता है ना, उस पर एक्सप्रेशंस, उस पर फीलिंग्स, एक मैं बहुत बुरी लड़की बन रही हूँ तो मैं अजीब से एक्सप्रेशन दिखाऊंगी, बहुत रूड होंगी, थप्पड़ लगाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। एक मैं बहुत महान लड़की बन रही हूँ, मेरे एक्सप्रेशंस में बहुत स्वीट बनूंगी। ये आप आ गई, ये आप आ रही हो एक्टिंग की तरफ। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कैरेक्टर देंगे। देखिए कैरेक्टर हम जो देंगे ना वो उसमें ढल जाएगा। KGF चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसमें मूवी में आपने हीरो देखा था, वो बहुत अच्छे। आप सेकंड स्टेप पे पहले आ गई हैं एक्टिंग पे। मैं आपको आप कह रहे हैं सेलेक्ट करने की बात कर रहा हूँ सिर्फ लुक वाइज। तो हम ज़्यादातर हीरो को अच्छा देखना चाहते हैं। हीरो फिल्म में कौन होता है? अच्छाइयाँ करने वाला। तो हम उसको बाय फेस, बाय पर्सनैलिटी भी, लुक वाइज भी अच्छा देखते हैं, नहीं देखते हम अच्छा। आपने खुद बोला था साउथ के जो हीरोज हैं, लेकिन वो वहाँ इतने अच्छे नहीं हैं। अरे नहीं, वो तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कलर डल है। वहाँ के तो यंग लड़के ऐसे ही है ना। तो हम एज अ हीरो उनको नहीं मानते हैं ना? नहीं मानते हैं, लेकिन कैरेक्टर में ढल गए, वो अच्छे लगते हैं। देखो वहाँ पर जो खूबसूरती है ना, बॉडी, डील डॉल, और वहाँ पे जब सभी का, यही तो कहना चाह रही हूँ। कैरेक्टर में देखें, वो पहले क्या करते हैं, बहुत अपनी सेल्फ के ऊपर बहुत मतलब मेहनत करते हैं, अपने आप को वैसा दिखाते हैं, अपने लुक्स पे मेहनत करते हैं। तो लुक्स पे मेहनत करे जाए तो कोई नेगेटिव इंसान पॉजिटिव दिखेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दिखेगा। अच्छा अब आपने रामचरण खूबसूरत नहीं है? कौन रामचरण? करेक्टर, इंडियन एक्टर, वो सही है, ठीक है। अच्छा, यश खूबसूरत नहीं है? सही है, बस बहुत हसीन और जमील नहीं। लेकिन अगर नेगेटिव कैरेक्टर दिया जाए तो वो कर लेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि बाय पर्सनैलिटी वहाँ जाते हैं हम एक्टिंग सामने बहुत सारे लोग हैं, हम तो डर रहे हैं। अच्छा, इसको वाइंड अप करते हैं। जजेस कर। तो मैं ये समझता हूँ, ये आपका भी। मैं ये समझता हूँ कि बाय पर्सनैलिटी हमारे लाशऊर में हमें, अच्छा इसको इस तरह भी ले सकते हैं हम कि एक सेलमैन है, एक चीज़ बेच रहा है, अगर उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, साफ़ सुथरा है, खूबसूरत है, तो हम उससे चीज़ ले लेते हैं, उसकी बातों पे यकीन करते हैं। एक बात सुनिए, नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊँ। आपने एक मिसाल सुनी है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी किताब को उसका कवर देखकर जज ना करें। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ हकीकत की नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारी माइंडसेट, आप छोड़ दें, हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं। माइंडसेट छोड़ देना, मेरा नहीं है, तभी तो मैं नहीं एग्री हो रही हूँ आपकी बात पे। हम किसी को, अब मैं बहुत स्वीट हूँ, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ आपको चीट करूँ, और ऐसा होता है। जो लोग बहुत अच्छे दिखते हैं वो दिल के अच्छे नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं। साइकोलॉजी आप कह रहे हैं ना, ये मेजॉरिटी है। नहीं, मैं असल में ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छे होते हैं, मैं हमारी माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि हम खूबसूरत को अच्छा समझते हैं बाय नेचर भी, और हम बदसूरत को बाय नेचर भी बुरा समझते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स खड़ा है, ये तो दिख भी रहा है, चोर दिख रहा है, ये तो मिसाल के तौर पे एक शख्स गली के कोने में खड़ा हुआ है और अपने मस्त में खड़ा हुआ है, हम ये तो कमीना चोर ही दिख रहा है। खैर बहरहाल, हम फर्स्ट ऑफ ऑल बाय लुक हम किसी को जज करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बहुत हद तक खूबसूरत लोग दिल के भी खूबसूरत होते हैं। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही और गलत ये हमारे व्यूवर्स बताएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए